شان شریعت نور طریقت مخزن حکمت اعلی حضرت نکہت ایمان دین کی عظمت حسن عقیدت اعلی حضرت حق سمجھایا حق فرمایا حق کے علاوہ سب ٹھکرایا حق کی عزت حق کی رفعت حق کی نصرت اعلی حضرت علم و ادب کے حاکم و سلطان علم و فضل کے نیر تاباں پیکر دانش فن کی تابش فکر کی ندرت اعلی حضرت شم رسالت کے پروانے آل محمد کے دیوانے پیش نظر اصحاب کی سیرت روح عقیدت اعلی حضرت الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ اولیاء امتہ حبیبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دروے چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ امام عشق و محبت سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال 1272 ہجری یعنی 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ 13 سال کی عمر میں تفسیر، حدیث، فقہ، کلام وغیرہ تمام علوم دینیہ کی تکمیل کر لی۔ قریب پونے 14 سال کی عمر میں دستار فضیلت کو اعزاز بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق تھا۔ اپنی 65 سالہ زندگی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 100 سے زیادہ علوم و فنون پر قریب 1500 کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائیں۔ علمی تحقیق کے مطابق سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 100 سے زیادہ علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی۔ نئی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کی تعداد 550 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جو کام تھا اعلیٰ حضرت نے تنہا انجام دے کر اپنی عظمت کا لوہا منوایا اور غیروں سے بھی منوا لیا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں تفسیر، حدیث، اصول حدیث، عقائد و کلام، فقہ، اصول فقہ، لغت فقہ، فرائض، تجوید، تنقیدات، تصوف، اخلاقیات، تاریخ، سیر، مناقب، فضائل، ادب، عروج، تکسیر، مثلث، ارزمہ طبقی، لوگارزم، نجوم، حساب، حیت، ہندسہ، ریاضی، فلسفہ اور منطق وغیرہ میں سینکڑوں کتابیں اور رسائل تحریر فرمائے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن جدید علوم و فنون کے حوالے سے بھی جب اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی سوال آیا تو آپ نے اس طرح سوال کا جواب عنایت فرمایا کہ بڑے بڑے سائنسداں علم ریاضی، علم نجوم، علم ارضیات، علم فلکیات وغیرہ کے ماہرین اش کر اٹھے اور سبھی کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ 26 صفر 1327 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक सवाल आया और ये सवाल भेजा था मुजीब रहमान खान साहब ने। इसके अलावा यही सवाल मौलवी अहमद शाह साहब ने भेजा था और सवाल ये था कि ज़लज़ला आने का क्या बाइस है, यानी ये जो भूचाल है, अर्थक्वेक है, ये क्यों आता है, इसका सबब क्या है, इसका कारण क्या है। तो आला हज़रत ने, अब देखिए कमाल की बात है कि इस तरह के सवालात ये तो जो इल्म अर्ज़ियात के माहिरीन हैं या साइंसदान हैं उनसे पूछे जाने चाहिए, लेकिन लोगों को ये यकीन था कि आला हज़रत की शख्सियत कई उलूम व फ़नून पर जिन्हें दस्तरस हासिल है और उनसे जो भी सवाल किया जाएगा उसका जवाब बहमदिल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो जब ये सवाल किया गया कि ज़लज़ला आने का सबब क्या है, बाइस क्या है, तो आला हज़रत ने जवाब इनायत फरमाया था। हम ये चाहेंगे कि आप इस जवाब को बगौर सुने और ख़ास तौर से जो आजकल के जो स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी इस जवाब को सुने। आला हज़रत ने फरमाया कि असली बाइस आदमियों के गुनाह हैं, यानी जो ज़लज़ला आने की जो असली वजह है, जो ख़ास कारण है, वो तो आदमियों के गुनाह हैं, लेकिन पैदा वो इस तरह से होता है कि एक पहाड़ तमाम ज़मीन को मुहीत है और उसके रेशे ज़मीन के अंदर अंदर सब जगह फैले हुए हैं। जैसे बड़े दरख्त की जड़ें दूर तक अंदर अंदर फैलती हैं। जिस ज़मीन पर माज़अल्लाह ज़लज़ला का हुक्म होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाता है, वो पहाड़ अपने उस जगह के रेशे को चुंबिश देता है, ज़मीन हिलने लगती है। रेशा क्या है? साइंसदानों का जो कहना है कि जो ज़मीन की प्लेट्स हैं वही प्लेट्स रेशा हैं। हज़रत ने मज़ीद एक जगह फरमाया कि लिखा है, और मैं आपको ये बता दूं कि फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 27 है और इसका पेज नंबर 96 है, यानी 96 है। आप चाहें तो घर में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आला हज़रत ने एक मज़ीद और इसमें आगे ऐड किया और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन को मुहीत एक पहाड़ पैदा किया है जिसका नाम काफ है। पहाड़ जिसे कोह भी कहा जाता है, जबल भी कहा जाता है, जबल काफ या कोहे काफ। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ इसके रेशे ज़मीन में ना फैले हों। जिस तरह पेड़ की जड़ ज़मीन के नीचे, आलाए ज़मीन थोड़ी सी जगह में होती है और उसके रेशे ज़मीन के अंदर अंदर बहुत दूर तक फैले होते हैं, और यही वजह होती है कि उस दरख्त के लिए वजह करार होते हैं, वो दरख्त टिका रहता है, और आंधियों में वो जो रेशे होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो आंधियों में गिरने से रोकती हैं। फिर दरख्त जिस कदर बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा दूर तक उसके रेशे घेरेंगे। जबल काफ जिसका तौर तमाम कुर्रे ज़मीन को अपने पेट में लिए है, उसके रेशे सारे ज़मीन में अपना जाल बिछाए हैं। कहीं ऊपर जाहिर होकर पहाड़ियाँ हो गए, कहीं सतह तक आकर थम रहे, यानी ज़मीन की सतह तक आए, थम गए, जिसे ज़मीन संगलाख कहते हैं, जो बहुत चटियल ज़मीन होती है। कहीं ज़मीन के अंदर हैं, करीब हैं या दूर हैं, ऐसे दूर कि पानी की जो जुआन होती है उससे भी बहुत नीचे। इन मकामात में ज़मीन का बालाई हिस्सा दूर तक नरम मिट्टी रहता है। ज़मीन के अंदर अंदर काफ के
रगो रेशे से कोई जगह खाली नहीं है। अब जिस जगह ज़लज़ला के लिए इरादा इलाही होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा होता है, अल्लाह की पनाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ को, जो कोहे काफ है, उस पहाड़ को हुक्म देता है कि वो अपने वहाँ के रेशे को जुम्बिश देता है। तो सिर्फ वहीं ज़लज़ला आएगा जहाँ के रेशे को हरकत दी गई। फिर जहाँ खफीफ का हुक्म है यानी हल्का, तो उसके जो मुहाजी रेशे हैं, मुहाजी रेशे को आहिस्ता हिलाता है। और जहाँ शदीद का हुक्म है वहाँ बक़ुव्वत, पूरी ताकत के साथ। यहाँ तक कि बाज़ जगह सिर्फ एक धक्का सा लगकर ख़त्म हो जाता है और उसी वक्त दूसरे करीब मकाम के दरो दीवार झोंके लेने लगते हैं और तीसरी जगह ज़मीन फटकर पानी निकल आता है। रब्बुल इज़्ज़त यहाँ के लिए हुक्म फरमाता है, काफ अपने रेशे को वहीं लर्जिश और जुम्बिश देता है और यही वजह है कि ज़लज़ला एक बस्ती में आता है और दूसरी में नहीं आता है। तो ये आज का पहला सवाल था जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किया गया था, ज़लज़ला के हवाले से, भूचाल के हवाले से, और आला हज़रत ने उसका कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब इनायत फरमाया। आप इस सवाल को और जो आला हज़रत ने इसका जवाब इनायत फरमाया है, आप फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 27 के सफ़ा 96 पर देख सकते हैं, सफ़ा 96 पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले एपिसोड में हम इसी तरह के किसी एक या दो सवाल के बारे में और जिसके बारे में आला हज़रत ने जवाब इनायत फरमाया है उस पर इंशाअल्लाह मज़ीद रोशनी डालेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस सीरीज़ को बग़ौर सुनें, इस्तिफ़ादा करें। जहाँ पर ज़रूरत हो मेरी इस्लाह की तो आप इस्लाह भी करें। मेरे आला हज़रत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।